नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी, Abariyako Jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. wherever they speak Swahili, isn't that lovely? Yes. Isn't that absolutely lovely? Fantastic. Now, Pradeep ji, there's been a slight increase in FDI in the last couple of months. In April, of course, it was down. In May, it's been higher. And industry has looked up. Job market has looked up in India. बिल्कुल सर। As far as poverty alleviation is concerned, that program is going on very, very well indeed. Modi ji is flying or has already flown. I think he's already flown. He's gone to the UK. The free trade agreement with the UK has already been signed, and I think now defense cooperation is going to go up. Modi ji has, before going, informed the whole nation that Jal Jeevan Mission, Har Ghar Nal Se Jal, is a massive success. 15.6 crore ghar, and mostly in the rural areas have been connected. Jal Jeevan Mission is going to be a success in the whole world. जिस प्रकार से 18,000 villages were only electrified till 2014. Today, I think the entire हर गांव बिजली, हर गांव बिजली का संकल्प लेके मोदी जी जा रहा है. That is what BJP claims, and it has been a real success. 321 योजनास, DBT, direct beneficial transfer, 45 lakh crore के ऊपर already बांट चुका. And the most important thing, he has saved money, 4.31 lakh crore, which is to just dissolve into the बिचौलियास. जी. तो यहाँ पर है, फिर वो अपनी तारीफ जिस प्रकार से 25 crore out of poverty, तो थी largest health care, आयुष्मान 70 plus को जो insurance है, now they say they claim that 90%, 90 crore people have social welfare schemes में already जोड़ चुका है. Social, तो स्वास्थ्य, तो I mean he has not left any segment. PM किसान. सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये मेरे लिए मोदी जी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसके बारे में लोग ज़्यादातर बात करते नहीं. सो हरियाणा में the male female ratio was always skewed in favor of males. Say if you had 1,000 males, you would have about 703 or 700 odd females. Today, for the first time, there are more females than males in Haryana, and that is all thanks to the Beti Bachao Beti Padhao program, taken very, very seriously by Modi ji, and not enough credit is given for that, which I think is rather sad. और दूसरी बात क्या है, अगर आप हरियाणा में देखें, most of the medals, 80% of all the medals that have been won in wrestling, in boxing and other contact martial sports have been won by girls from Haryana, and I think that's huge. That is some achievement. When he Prime Minister says, जब मैं कहता हूँ कि योगा से ब्रह्मोस तक हमने हर चीज कवर किया, विकास भी और विरासत भी. Yoga, we have got International Yoga Day, and that is totally the work of Prime Minister Modi to see that it becomes an international event, and it's made it an international event. BrahMos missile, ये प्रतीक है that we are the latest in warfare, the latest equipments, latest technology, missiles. तो योगा से लेके ब्रह्मोस तक जब मैं कहता हूँ, मोदी जी, बीजेपी का कहना है, तो उसमें सब कुछ कवर हो गया. तो you know, right from Operation Sindoor to the Chinese, जिस प्रकार से उन्होंने किया, तो all the wars and all the technologies, मगर विरासत को संभाले हुए. DBT 321 योजनास, 45 लाख करोड़, उज्ज्वला आवास योजना, 80 करोड़ को फ्री राशन, पूरे रिपोर्ट कार्ड बीजेपी जिस प्रकार से आउट किया. you know, राम टेम्पल हो, ट्रिपल तलाक है, सर्जिकल बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर, उरी, पुलवामा, पहलगाम, हर चीज एक सक्सेस. But as far as Rahul Gandhi is concerned and Akhilesh Yadav are concerned, they've said very, very clearly, we would like some answers. A, on Operation Sindoor, and two,
वी वुड लाइक सम आंसर्स ऑन पुलवामा के ऊपर जरा भाई कुछ तो बताइए। दैट्स व्हाट दे हैव सेड। नाउ लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू आवर गेस्ट। सीधे चलते हैं अपने गेस्ट के पास। वी हैव अ वंडरफुल पैनल इंडीड। अशोक यादव साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बड़े सीरियस लग रहे हैं, बड़ी गंभीर मुद्रा में सर। सब ठीक तो है? चिंता में है जी। डॉक्टर सुधीर डोने फ्रॉम अकोला, हाउ आर यू सर? नमस्कार सर, फाइन, नमस्कार। डोने साहब बहुत दिनों के बाद। एंड आवर ओल्ड फ्रेंड समीर भाकरे साहब ऑफ द बीजेपी। समीर भाकरे साहब नमस्कार। लॉन्ग टाइम। नमस्कार सर, नमस्कार। तो अशोक यादव साहब, आज प्रधानमंत्री जी विदेश गए, वो गए यूके। एक बार फिर मतलब मैं आपको बता दूं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन हो चुकी है यूके के साथ, लेकिन अभी डिफेंस कोऑपरेशन में भी बहुत कदम उठाने हैं और पता नहीं और क्या क्या कुछ करना है वहां पे। और उसके बाद 25 तारीख को मालदीव्स का नेशनल डे है, जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री वहां के चीफ गेस्ट होंगे। तो अभी अगर मालदीव्स का रवैया पहले अगर देखें 3 या 4 साल पहले और अभी देखें तो टोटल चेंज आ गया है सर। पहले तो वो हिंदुस्तान को बहुत गाली दे रहे थे, मोदी जी को खुद को व्यक्तिगत तौर पे गाली दे रहे थे, अब उनको चीफ गेस्ट बना दिया नेशनल डे पर। तो अशोक यादव साहब, आप ये कहेंगे कि ये काफी बड़ी अचीवमेंट है मोदी सरकार की? अशोक यादव साहब देखिए, सबसे पहली बात, मैं एक गायत्री परिवार का कहीं स्लोगन लिखा हुआ था, मैं उसको पढ़ रहा था। बोलिए ना तो लिखा था, भागो नहीं बदलो। मतलब भागने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा जी। अब मानसून सत्र चल रहा संसद का, जी पूरा विपक्ष मोदी जी को सुनना चाहता है, तो मोदी जी के ऊपर ये चीज लागू होती है, भागो नहीं बदलो। आप परिस्थितियों को बदलो, परिस्थितियों से भागने से समाधान नहीं निकलेगा। और जो आपने कहा मालदीव की बात किया, तमाम फॉरेन देशों की बात होती रहती है कि फला देश में मोदी जी को इतना बड़ा सम्मान मिला, फला देश में मोदी जी के सामने राष्ट्राध्यक्ष जो है उनके कदमों में गिर पड़ा, फला देश में मोदी जी को ये सम्मान मिला। अच्छी बात है। सवाल ये उठता है कि हमारे देश की विदेश नीति कहीं न कहीं उसका जो उसकी जो मूल भावना थी उसमें ड्रेस्टिक चेंज हुआ है। अब विदेश नीति हमारे देश की हो या किसी भी देश की हो, उस विदेश नीति की सफलता का पैमाना क्या होता है कि देश क्या हासिल करता है, देश हित में क्या हासिल होता है, कितने देश हमारे साथ खड़े रहते हैं बुरे वक्त में। लेकिन आज की विदेश नीति है कि मोदी जी की चेहरे को चमकाने के लिए पूरी फॉरेन पॉलिसी, पूरा फॉरेन मिनिस्ट्री सब लगे हुए हैं कि फला देश में मोदी जी का ये सम्मान हुआ। अरे मोदी जी ने हासिल क्या किया उस देश से? मोदी जी ने क्या हासिल किया, ये सवाल उठता है। तो विदेश नीति की सफलता मोदी जी के सिर्फ चेहरे की सफलता या मोदी जी के सामने कौन राष्ट्राध्यक्ष ने क्या बिहेव किया इस पे नहीं, बल्कि देश ने क्या हासिल किया है जी, देश हित में, इस पे चर्चा होनी चाहिए। यादव जी, अशोक यादव जी, आज बीजेपी अप इन आर्म्स, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी कहते कि नमाजवादी अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट में बगल में मॉस्क में चले गए डिंपल यादव जी के साथ और उन्हें कहा इस्लाम का अपमान किया डिंपल यादव ने। एक तो तुष्टीकरण दिखा और तुष्टीकरण करते करते इस्लाम का अपमान भी किया। इस किस प्रकार से क्या मीटिंग बोले क्या चाय पार्टी एक मॉस्क के अंदर कर सकते हैं? ये इस्लाम का अपमान है। देखिए, ये बात का कौन रहा है कि इस्लाम का अपमान हो रहा है? ये बात अल्पसंख्यक मोर्चा का जो पदाधिकारी है वो व्यक्ति बोल रहा है। वो व्यक्ति अभी 3 दिन पहले बनारस में माननीय योगी जी आए थे, उन्होंने क्या बोला था? जो योगी जी शपथ में अपने बोले होंगे ना, भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना संविधान सम्मत सबके साथ न्याय करूंगा, ये तो शपथ लिए होंगे ना। उसके बाद योगी जी ने क्या बोला कि ये जो कौन सा जो मुसलमान समाज का निकलता है ताजिया, ये ताजिया वाले ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। मतलब आप बताइए, चुने हुए मुख्यमंत्री और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ये अल्पसंख्यक मोर्चा का जो पदाधिकारी भाजपा का है ये कहाँ था? ये स्पाइनलेस लोग हैं, इनके पास कोई स्पाइन नहीं है। ये भाड़े के मजदूर की तरह भाजपा में काम करते हैं और इनको न मस्जिद के अपमान से समस्या है, न मुसलमान धर्म के अपमान से समस्या है। इनको बस भाजपा एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है, अब बताती है कि तुम्हें कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। दूसरा सवाल, मस्जिद में अपमान हुआ। आप हमारे सांसद इनवाइट किया था हमारे पूरी पार्टी को, सारे सांसदों को चाय के लिए,
और उनका घर भी वही है और मस्जिद भी वही है। तो क्या मस्जिद में बैठ जाना, हम कोई वहां रैली तो कर नहीं रहे थे, या हम कोई पॉलिटिकल वहां पे चीजें तो कर नहीं रहे थे, हम तो बस चाय पीने के लिए हमारे राशिद जी और बाकी हमारे सांसद गण गए थे। और इसमें अपमान कहां से हो गया? जो व्यक्ति सब, आप देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, जो व्यक्ति एक सर्वोच्च संस्था पर बैठा हुआ, वो चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका किसका अपमान कैसे कैसे किए, उनके मुख्यमंत्री जी, उनके पार्टी के तमाम नेता कहां का अपमान किए, किसका किसका अपमान किए, किसी से छुपा नहीं है। उस अपमान पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात मैं कहूंगा, आप मस्जिद में भाजपा वाले कह रहे हैं नमाजवादी, ये एक शब्द इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी। देखिए, नमाजवादी या नफरतवादी दो बातें हैं। नमाजवादी होना, नमाजवादी क्या है? नमाज क्या है? एक अपने गॉड के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति एक समर्पण है, एक आस्था है। तो हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा कि आस्था हमेशा जोड़ती है और नफरत हमेशा तोड़ती है। तो अगर हम आस्था दिखा रहे हैं कहीं, तो हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब भाजपा नफरत दिखाकर तोड़ने का काम करती है। महात्मा गांधी जी ने अपनी कविता में कहा था ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। भाजपाइयों को सन्मत कब आएगी? ये महात्मा गांधी जी ने कहा, कम से कम इनको सन्मत आनी चाहिए। जी, राइट। लेट मी गो अक्रॉस टू डॉक्टर ढोने। डॉक्टर ढोने, in spite of so many explanations having been given by the DGMOs, हमारे तो डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं तीनों विंग्स के, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, फिर भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि उनके पास और भी सवाल हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके, और वो बार बार ये कहते हैं कि पुलवामा से लेकर के अभी पहलगाम तक कोई जवाब नहीं आया सरकार से। सर, और कितने जवाब चाहिए आपको, बताया ना सर डॉक्टर ढोने। नहीं, राहुल गांधी जी ने बराबर बोले, क्या गलत बोला? देखिए, पहलगाम में जो हुआ, जो 4 लोगों ने इस देश के लोगों को मारा है, हिंदुस्तान के लोगों को धर्म पूछ के मारा है, वो कहाँ गायब हो गए? उनको पकड़ना चाहिए, वो कहाँ है? और सरकार ने बताया था हमें पता है कौन है वो, हमने उनकी पहचान कर ली है, कहाँ है वो? एक। और इसके पहले पुलवामा में किसने लाया था RDX, ये भी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। देवेंद्र सिंह का क्या हुआ, ये भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। कहाँ है ये सब? यानी ये तो बात ऐसी हो गई कि बीजेपी वाले छुपा रही है, अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? पुलवामा में किसने अटैक किया था, किसने RDX लाया था, या पहलगाम में जो किए थे 4 लोग जो है, जिन्होंने धर्म पूछ के मारे, चुन चुन के हिंदुओं को मारे। हमारा तो बहुत खून खोल रहा है, लेकिन बीजेपी वालों का खून नहीं खोल रहा है कि जिन्होंने मारा उनको सजा मिलनी चाहिए। तो क्या इनको पूरे देश में इसका फायदा लेना की इच्छा थी कि इस जो हिंदू और मुस्लिम ऐसा भेद करके जो पाकिस्तान के लोगों ने किया है, तो उससे अपने को पूरे देश में फायदा होगा, पूरे हिंदू लोग यूनाइटेड होंगे और हमारे साथ आएंगे। बस यहीं तक थी। जो मर गए उनके लिए कुछ नहीं, आपके लिए जो शहीद हो गए उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। वो हिंदुओं के लिए क्यों मरे? वो हिंदू थे इसीलिए मरे ना, उनको तो धर्म पूछ के मारे है ना जी। तो क्यों बीजेपी वालों का खून नहीं खोल रहा है इस बारे में? कहाँ राहुल गांधी बराबर बोल रहे हैं कि कहाँ है पहलगाम के मुद्दे पे या पुलवामा के मुद्दे पे जो दोषी लोग हैं, किसको पकड़े हैं? क्यों बचा रही है बीजेपी उनको, दोषियों को? दोने साहब, यहाँ एक विकसित भारत की ओर देश बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी देखो, पार्लियामेंट सेशन के बीच में भी फ्री ट्रेड डील साइन करने के लिए यूके जा रहे हैं, उसके बाद अलग। तो 4 सर मैं पूरा कंप्लीट 11 से 4th बीजेपी का कहना है, 11 से 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, योगा से लेके ब्रह्मोस, विकास भी, विरासत भी, डोकलाम से लेके ऑपरेशन सिंदूर, विजय पथ पर जा रहा है। तो ये सब दिख रहा है लोगों को। आप बार बार आलोचना मोदी जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, मोदी ने अचीव नहीं किया, सब दिख रहा है। दोनों साहब, नहीं, कहां दिख रहा है सर? ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस हम जब भी मानेंगे कि जब ये लोग अगर पकड़े गए, 4 लोग पकड़े गए, तो हम मानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो गया। लेकिन कहां पकड़े गए? वो फेल हो गया ऑपरेशन सिंदूर। हम तो, हमारे लोग तो, चैनल वाले, आपका चैनल छोड़ दीजिए, लोग तो यहाँ तक कराची तक पहुंच गए थे, इस्लामाबाद तक पहुंच गए थे, लाहौर तक पहुंच गए थे। फिर क्या हुआ उसका? उसके बाद क्या हुआ?
तो वो क्यों वापस आए? और वो ट्रंप ने बोल दिया कि अब ये बंद हो गया, सीज फायर हो गया, मोदी जी ने मान लिया। आज कहाँ फिर बोला है success हो उन्होंने। गया? आज उन्होंने कहाँ फिर बोला है। success? हाँ, आज फिर बोला है ट्रंप वह साहब ने। उन्होंने बोला कि मैंने उनको जी। व्यापार का हवाला देते हुए जी। सीज फायर करने को बोला है। अब व्यापार का हवाला यानी क्या है? वहां पे अदानी के लिए किया उन्होंने, अदानी के व्यापार के लिए उन्होंने पूरे देश को दांव पे लगा दिया। पाकिस्तान के दो टुकड़े हो सकते थे, बलूचिस्तान अलग हो सकता था, मूवमेंट शुरू हो गई थी, हमारी पहुंच गई थी पाकिस्तान तक। हाँ, लेकिन क्या हुआ आगे? क्यों रोक दिया हमारे फौज को? भाई मैं फौजी का बेटा हूं, जी, मेरा दुरुस्त भी बात बहुत है। खून खौलता है। पाकिस्तान के खिलाफ मेरे पिताजी ने जंग लड़ी थी, और जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था उसमें मेरे पिताजी थे। तो हम तो पाकिस्तान के खिलाफ बेसिकली है। जी। तो ये क्यों? तो आपके मुताबिक देखिए सर, आपने जो बोला कि सक्सेस हो गया ऑपरेशन सिंदूर, सक्सेस नहीं हुआ। हम सक्सेस उसको तभी मानते थे जब जिन्होंने 4 लोगों ने मारे दहशतवादियों ने, वो अगर पकड़े जाते थे या पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते थे तो मानते थे ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो गया। तो कहने चीन का के मतलब साथ ये क्या हुआ? हुआ। चीन ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, हमारे कुछ भूमि पे कब्जा कर लिया, अरुणाचल प्रदेश पे। और ये बोला किसने? भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने संसद में बोला है। तो क्या सक्सेस हो? आप सक्सेस की बात कर रहे हैं, दोनों साहब अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं सर। हाँ बोलो। पर कैपिटा इनकम जो है वो कम हो गया। कुछ लोगों का इनकम बढ़ा है, कुछ उद्योगपतियों का इनकम बढ़ा है, आम पब्लिक का इनकम बढ़ा नहीं है। पर कैपिटा इनकम कम हो गई। मैं आपको सुना और दूं, देश पे कर्जा रिपोर्ट- कितना बढ़ गया सर? आपको 55 लाख से करोड़ था। बीजेपी का 55 लाख करोड़ था 2014 में, 205 लाख करोड़ हो गया, 150 लाख करोड़। यानी 70 साल में कांग्रेस के राज में 55 लाख करोड़ का कर्जा हुआ था, आपने 10 साल में उसको 205 लाख करोड़ किया। दोनों साहब कहां ने गया रिपोर्ट ये कार्ड पैसा? सुनिए। और ये जो पैसा आप बता रहे हैं, आप सड़कें बनी है, सड़कें तो सर वो तो बीओटी के बेस पे बनी है। हाँ, बिल्ड एंड यूज, उसका तो टोल वसूला जा रहा है। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर कहां हुआ? 8th biggest tourist economy in the world, आंकड़ा है 8th biggest tourism economy in the यार world, ये सब पहले से था। 5th इनको largest सिर्फ प्रचार करना बहुत अच्छी export तरह से economy in आता the है। world। अब फिशरीज के बात करें, ब्लू इकोनॉमी फिश प्रोडक्शन अप बाय 104%। ये सब मोदी जी के पॉलिसीज की वजह से हो गया, बीजेपी का कहना है। दोनों साहब नहीं नहीं, देखिए सर, मैं ये बात को मानता हूं कि बीजेपी के राज में जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो बीफ का बढ़ा है। इस बात की मैं इसको बात को मानता हूं मैं, कि जो बीफ है उसका बड़ा है, व्यापार बड़ा है, एक्सपोर्ट भी बड़ा है। इस देश की गायों को, बैलों को कत्ल करके उनको विदेश में उनका मांस भेजने का काम मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी किया था। इसीलिए बोलते थे कि गाय हमारी माता है, अटल बिहारी खाता है। तो ये क्यों हुआ था उस वक्त? क्योंकि अटल जी के राज में वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया था एक्सपोर्ट। तो इसीलिए ये भी वही अटल जी का जो काम, बचा हुआ काम था, मोदी जी पूरा कर रहे हैं सर। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू समीर भाकरे साहब। इसके पहले कि मैं समीर भाकरे साहब के पास जाऊं, एक छोटी सी बात है, और मैं माफी चाहूंगा आप सबसे और अपने सभी दर्शकों से कि मुझे शो की शुरुआत इसी चीज से करनी चाहिए थी। सर, आज 119वीं वर्षगांठ है चंद्रशेखर लोकमान्य आजाद तिलक जी की। की। चंद्रशेखर आजाद की सर, चंद्रशेखर आजाद की। और लोकमान्य तिलक जी, लोकमान्य तिलक जी की और चंद्रशेखर आजाद जी की 119वीं वर्षगांठ आज है। वन ऑफ द फर्स्ट मार्टर्स ऑफ द 20th century, the man who actually fought the British with weapons, चंद्रशेखर आजाद। और आजाद जी जो थे सरदार भगत सिंह के भी गुरु थे, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सब लोग उनको अपना गुरु माना करते थे, बहुत इज्जत देते थे उनको। तो चंद्रशेखर आजाद जी को हम सब लोगों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। और लोकमान्य तिलक के बारे में जो कहें वही कम है सर, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, सीधी बात है। आज की तारीख में जिस प्रकार, अभी गणपति भी आने वाला है सर, 27 अगस्त से शायद गणपति भी आने वाला है, आई थिंक 27 अगस्त। जिस प्रकार सार्वजनिक गणपति मंडल उन्होंने बनाए हर जगह पे, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र की देखा देखी हर जगह पर गणपति को लेकर के जिस प्रकार एकता दिखाई पूरे हिंदुस्तान ने,
It's amazing, really and truly amazing. And I hope that unity continues. Whether you are a Hindu, you are a Muslim, you are a Christian, you are a Sikh, हर एक का गणपति मंडल होता ही है महाराष्ट्र में. अशोक यादव जी, आप महाराष्ट्र में नहीं हैं, मैं इनवाइट करता हूं आपको. आप अगस्त 27 के बाद महाराष्ट्र में जरूर आइएगा, मुंबई जरूर आइएगा और आप यहाँ गणपति का नजारा देखिएगा. आप, मैं कहता हूं, हर साल, मैं दावे से कहता हूं, आप हर साल यहाँ पर वापस आएंगे इन 10 दिनों के लिए. 200% आएंगे सर. दिल्ली में भी होता है सर गणेशोत्सव. हाँ होता है सर, लेकिन ऐसा मैंने देखा है सर. मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली मुंबई, नासिक, नागपुर, इंदौर जैसा कहीं नहीं होता है. हाँ ये तो सही ये है। इसमें कोई दो राय नहीं है. समीर बाकरे साहब, FDI has gone up. सर जी ये गणेशोत्सव शुरू करने वाले लोकमान्य तिलक ये कांग्रेस के लीडर थे जी मालूम है सर. और आज उनकी जो है उनका जो पर्व होता है दीपक तिलक, उनका अभी निधन हुआ कुछ दिन पहले. जी और उनका भी जो लड़का है रोहित तिलक, वो भी कांग्रेस में है. जी कांग्रेस का मतलब फिलहाल कहने का मतलब ये हुआ, फिलहाल के लिए परिवार, फिलहाल के लिए कांग्रेस में, कहने का मतलब ये हुआ. और शायद अवार्ड गडकरी साहब को दिए. तिलक, अगर उनके पास नहीं, वो ठीक है. तिलक फाउंडेशन ने अवार्ड गडकरी साहब को दिए सबसे. नहीं, उन्होंने पवार साहब को भी दिए है, उन बहुत लोगों को दिए है. तो मैं बाकरे साहब के पास जाऊं सर, आपकी इजाजत हो? हाँ बिल्कुल, अगर आपकी परमिशन हो. समीर बाकरे साहब, FDI has gone up. It looked in April that there was a dip. In May again the figures have gone up. और जो per capita की बात कर रहे थे वो, which is quite true, इसमें कोई दो राय नहीं है. For that the economy will have to grow at around 10 or 11% for per capita income to keep pace with the population. Population के साथ साथ अगर per capita income को pace रखना है तो our economy will have to grow at about 11 or 12%. My own idea is that 10.5% will do. 10.5% genuine. अगर 10.5% using the base year at say 2000 का अगर हम लोग बेस ईयर इस्तेमाल करें और उस पर अगर 10% हम लोग बढ़ें तो आई थिंक वी आर थ्रू. हाउएवर आई मस्ट स्टेट ओवर हियर अगेन, इन टर्म्स ऑफ पावर परचेज पैरिटी वी आर द नंबर 3 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. पावर परचेज पैरिटी में भारत, USA, चाइना और उसके बाद भारत है. पावर परचेज पैरिटी का मतलब है सर, अगर जो दर्शक उसके बारे में जानते नहीं तो मैं आपको बता दूं. फॉर एग्जाम्पल, अ कोक कॉस्ट से अबाउट $3 or $4 in the US. Over here you can get a small pint of coke for about 50 rupees or 100 rupees or even less than that. इसी तरीके से जो चीज़ें यहाँ पर से आपको 50 रुपए में मिल जाती हैं या 45 रुपए में मिल जाती हैं, USA के अंदर वही चीज़ जो है exactly the same product आपको उसके लिए 2000 रुपए या 3000 रुपए खर्चने पड़ते हैं. So in power purchase parity India is not doing badly at all. तो सर अभी जो UK जा रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनली एंडोर्स करने के लिए, हाउ डू यू थिंक इट्स गोना हेल्प अस? समीर बाकरे साहब. देखिए, बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन, जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे थे कि मोदी जी जा रहे हैं और वो पार्लियामेंट में नहीं है. मैं तो इन दोनों पार्टियों से पहले आह्वान करना चाहूंगा कि आप पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट तो कीजिए. आप भाग रहे हैं, पार्लियामेंट में भाग लीजिए. तो आपकी जो दोनों पार्टियां हैं, क्योंकि आपका परिवार खतरे में है, तो परिवार को बचाना है, इसलिए आप ये संसद के बाहर पूरा हल्ला कर रहे हैं. सरकार ने कहा है कि हर चीज पे हम डिस्कशन के लिए तैयार है, राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किस बात का हल्ला कर रहे हैं बाहर संसद में, क्योंकि ये जब संसद में डिबेट करेंगे तो ये खुद एक्सपोज हो जाएंगे. अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि धर्म पूछ के मारा है. तो पहले आप वडेट्टीवार जी को समझाइए कि धर्म पूछ के मारा है कि नहीं, क्योंकि वो डिनाई कर रहे हैं. आपके इतने बड़े कद्दावर नेता है वडेट्टीवार जी, उन्होंने डिनाई कर दिया कि आतंकवादियों के पास इतना समय नहीं रहता कि धर्म पूछे. तो आप एक कुछ बोल रहे हैं और आपके लीडर कुछ बोल रहे हैं. दूसरी बात ऐसी है कि आप बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल तब माना जाएगा जब पहलगाम में जो आतंकवादी थे वो पकड़े जाएंगे. तो हाँ, वो पकड़े जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वहां के जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको डिस्ट्रॉय करने का ऑपरेशन था. और पूरे दुनिया ने माना है कि पाकिस्तान की करीब 35% एयर बसेस डिस्ट्रॉय हो गई. वहाँ इतने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मरे. तो मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने खुद के दुनिया में रहती है और ये पूरे जमीन से कट चुकी है. इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में अभी तक ये 100 चुनाव हार चुके हैं और मुझे पता नहीं है वर्ल्ड रिकॉर्ड और कितना बढ़ाना चाहते हैं. और देखिए, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सवाल है, वो कोई छुट्टी पे नहीं जा रहे, वो काम पे जा रहे हैं. राहुल गांधी बीच बीच में छुट्टी पे चले जाते हैं फॉरेन में, किसी को पता नहीं रहता कहाँ जा रहे. मोदी जी का तो पूरा पब्लिक लाइफ पूरे ट्रांसपेरेंट है. अगर यूके जा रहे ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जा रहे, इतने सालों से ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन में था,
तो आज वो साइन करने जा रहे। देखिए राजीव जी, जी। जब ट्रेड एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में साइन होता है, सो कुछ गिव एंड टेक भी होता है। एज अ इकोनॉमिस्ट आई विल टेल यू कि कुछ चीजों पे हमको उनको रियायत देनी पड़ेंगी क्योंकि हमको कुछ रियायतें चाहिए। सो ट्रेड एग्रीमेंट इज अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेड विच विल हैपन बिटवीन टू कंट्रीज इन फ्यूचर। और एक मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि एक कंट्री से ट्रेड एग्रीमेंट होना दैट्स आल्सो इज अ बिग अचीवमेंट। यूके को जैसे हमने पीछे छोड़ा एज इकोनॉमिक सुपर That's पावर, right. लेकिन यूके इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। आज भी फाइनेंशियल कैपिटल में या फाइनेंशियल वर्ल्ड में लंदन का बड़ा नाम आता है। कुछ बड़ी डिफेंस की कंपनीज और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज आज भी यूके से ऑपरेट होती है। सो इंडिया has got a strategic partnership with UK and this trade agreement will further boost our cooperation। और ये cooperation के कारण डेफिनेटली फायदा हो रहा है। आज अगर इतने बाहर के जो कंपनीज है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे टेस्ला हो, चाहे दुनिया भर की कंपनीज इंडिया में आ रही है, और आप महाराष्ट्र के आंकड़े देखिए, 40% FDI का कंट्री का महाराष्ट्र में आ रहा है। तो देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो पूरा विकास हो रहा है, दोनों साहब की पार्टी गढ़चिरौली में कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज कल पूरा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट देवेंद्र जी वहाँ इनॉग्रेट कर रहे हैं। कल 14,000 लोगों को वहाँ रोजगार मिला है। जो नक्सल मूवमेंट में शामिल थे वो आज HR में काम कर रहे हैं, लॉयड्स मेटल में। तो मेरा ऐसा कहना है कि एक लीडर का एक विजन रहता है। जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है, और ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनके लोग मतलब पदाधिकारी के बारे में कुछ बोल रहे थे। मेरा ऐसा कहना है प्रदीप जी, मैं चैलेंज करता हूं ये दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को कि क्या आपके बीच में से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की, यादव जी की फैमिली के अलावा कोई समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? या गांधी परिवार के अलावा कोई कंट्रोल कर सकता है क्या कांग्रेस पार्टी? हमारे तो रविंद्र चौहान साहब जो एक डोंबिवली से है, एक साधारण कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता थे, वो आज अध्यक्ष बन गए। हमारे देवेंद्र जी इतने मेयर से लेके तो मुख्यमंत्री बन गए। मोदी जी 45 साल काम करके प्रधानमंत्री बन गए। तो मेरे को पूछना है इन दोनों से कि ये परिवारवादी पार्टी में क्या कोई पॉसिबल है कि आपके जो शीर्ष फर्स्ट फैमिली ऑफ योर पार्टी के अलावा कोई बन सकता है आपके यहाँ? तो मुझे बताइए कि किसी के हाथ में कंट्रोल आप दे सकते हैं? तो आप भाजपा पे कमेंट करते हैं, तो आज भाजपा की स्ट्रेंथ जो है ये कार्यकर्ता है। और ये हम लोग सर आज सत्ता में इसलिए नहीं बोल रहे, हम तो 60 साल से लड़ाई लड़ रहे ना, हम तो सबसे ज्यादा अपोजिशन में हम रहे। तो हमारे कार्यकर्ता ने जमीन पे काम किया। आज भी देखिए देवेंद्र जी का जो मतलब बर्थडे था, उसमें 1088 जगह रक्तदान हुआ, 78,833 मतलब ब्लड डोनेट हुआ। इट इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड नाउ। सो भाजपा ये संगठन की पार्टी है, भाजपा ये सेवा की पार्टी है, और भाजपा ये देश की पार्टी है। राहुल गांधी बाकरे साहब, पार्टी हमारी देश सेवा के लिए है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, इसलिए हमको रोज नई नई उपलब्धियां हो रही है। बाकरे साहब, राहुल गांधी जी ने आलोचना किया है, वो थोड़ा सोचने लायक है। 767 farmers committed suicide in the first 3 months of 2025। फार्मर सुइसाइड जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र में हो रहा है। और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर पत्ता रम्मी खेल रहे हैं ऑन द मोबाइल। और आज पूरे महाराष्ट्र में एक तरह का रम्मी पत्तों को लेकर एक मजाक बन गया है। सब शेतकरी, संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ता, अलग अलग रीजनल कार्यकर्ता सब मजाक उड़ा रहे कि क्या कर रहा हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है, भले देवेंद्र फडणवीस चाहता हो कि इस्तीफा हो। तो क्या ये एक कोई शर्मनाक एक जो एक सिंपैथी होना चाहिए फार्मर्स की तरफ से प्रति, क्या ये दिखने को मिल रहा है सरकार में? हाउ डू यू सी दैट? देखिए, आप देवेंद्र जी ने फार्मिंग के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में काफी सीरियस एफर्ट्स लिए हैं। आज हर साल 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, आने वाले 5 साल में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में AI पूरी तरीके से लाया है। उन्होंने 2 बड़े प्रोजेक्ट जो है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो वैनगंगा नरगंगा का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, और दूसरा और एक प्रोजेक्ट है, तो 1 लाख करोड़ का उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। देखिए, आपने फार्मर सुसाइड का जो बात किया, 667 फार्मर है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारे प्रदेश में एक भी फार्मर आत्महत्या करता है तो हम सबके लिए शर्म की बात है। लेकिन मैं स्टैटिस्टिकली कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 766 फार्मर की आत्महत्या हुई है, तो मैं उनको रिमाइंड करना चाहूंगा कि उनके 10 साल के कार्यकाल में 55,000 फार्मर की डेथ हुई है। ये देखिए, फिर से मैं इनसेंसिटिव नहीं होना चाहता हूँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग द डेथ फिगर्स, मैं जस्ट एक परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूँ।
एक फार्मर भी अगर सुसाइड करता है तो ये हम सबके लिए शर्मनाक बात है। लेकिन देवेंद्र जी फडणवीस को पता है कि मराठवाड़ा और विदर्भ में फार्मर्स की सुसाइड क्यों हो रही है। देखिए कांग्रेस एक 60 साल से हमारे बैकवर्ड रीजन को बैकवर्ड ही रखा, चाहे विदर्भ हो चाहे मराठवाड़ा हो। और राजीव जी देखिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है एग्रीकल्चर के, इरिगेशन के, जी। दीज आर लॉन्ग टर्म थिंग्स और देवेंद्र जी लॉन्ग टर्म चीजों पे काम कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। आप देखिए इतने 45 लाख फार्मर्स के लिए उन्होंने सोलर की योजना लाई और आज फार्मर्स को दिन में बिजली मिलने वाली है और आज फार्मर्स को पूरी अनइंटरप्टेड बिजली मिलने वाली। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच देवेंद्र जी हैज टेकन। बट वी आर स्टिल नॉट लुकिंग एट मिनिस्टर के द बारे में जो आपने बोला जी। मैं उससे एग्री करता हूं कि इट इज नॉट अ हेल्दी साइन और ऐसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को डेफिनेटली इट इज नॉट अ बिहेवियर व्हिच इज टॉलरेटेड। देवेंद्र जी ने अपनी और नाराजगी उसके ऊपर उन्होंने और कहा बताई भी, है। सर, और आज कहा अजीत भी तो है ना पवार जी उन्होंने। उनसे नाराज है तो जो एक्शन उन पे लेगी पार्टी उनकी। सर कोकटे साहब ने ये भी कहा है कि जो सरकार है वो भिखारी है वगैरह वगैरह, ये सब बोलने की क्या जरूरत थी। इन एनी इवेंट आई वुड लाइक टू मेक वन पॉइंट। इट इज उसके बाद भी खत्म वहां पर हुआ नहीं बाकरे साहब। चावा ग्रुप के लोगों को जिस तरफ पीटा गया वो भी दर्दनाक और शर्मनाक चीज है। He is in hospital, वहां पे इट नेवर एंडेड देयर और नो रिमोर्स, नो फीलिंग, नो सिंपैथाइजिंग, जो कहते हैं कंपैशन दिखाना कि गरीबों और जो पिछड़े को तरफ आगे बाकरे साहब। देखिए सर बीजेपी नेवर सपोर्ट्स एनी काइंड ऑफ वायलेंस, तो हम कंडेम करते हैं जो छावा संगठन के जो पदाधिकारियों पे हमला हुआ। देखिए आज सुनील तटकरे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने उनका निवेदन लिया और छावा संगठन ने भी एक निवेदन दिया और उन्होंने अपने पत्ते उनके आंख पे फेंके। तो ये भी कोई जो बर्ताव है छावा संगठन का ये कोई काबिले तारीफ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी है उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, ये बिल्कुल गलत है। उनके ऊपर एफआईआर हो गई है और अजीत पवार साहब ने खुद उनको रिजाइन करने के लिए बोला है। सो आज ऐसा है कि जो एक्शन कानूनन होनी चाहिए थी वो हुई है, पॉलिटिकली जो एक्शन होनी चाहिए थी वो भी हुई है। सो हमारी महायुति की सरकार इस तरीके के बिहेवियर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती एंड वी कंडेम सच बिहेवियर। बट जिस तरीके से छावा संगठन भी पत्ते फेंक रही है सुनील तटकरे साहब के मुंह पे, तो दिस इज ऑल्सो शुड बी कंडेम, इट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। उनका निवेदन देना, उनका प्रोटेस्ट करना वाजिब है, लेकिन इस तरीके से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसके ऊपर ऐसे पत्ते फेंकना, दिस इज नॉट डन। Sir, but Sameer Bagre sahab, before I go to Ashok Yadav sahab again, this is a very important thing and I would like Ashok Yadav sahab also to come in on this. मैं चाहूंगा कि अशोक यादव साहब भी इसके ऊपर जरा बात करें क्योंकि यूपी also has very similar problems. सर क्या है कि नदी जोड़ प्रकल्प जो है आपका वो यहाँ पे महाराष्ट्र में सक्सेसफुल हो जाएगा। The way it is going right now, I can see it. This time there is a lot of seriousness about it. The initial studies have already been done. और धीरे धीरे करके सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है बागरे साहब, ढोने साहब और अशोक यादव साहब कि इकट्ठा पूरे महाराष्ट्र में नहीं होगा। लेट्स बी वेरी क्लियर, इट विल हैव टू बी डन डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट और रीजन बाय रीजन बाय रीजन। तो उसमें इसलिए आपको 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, हो सकता है 10 साल भी लग सकता है, बिकॉज अगर आप इंस्टेंटली करेंगे तो यू विल बी डिसरप्टिंग द एंटायर सिस्टम। लेकिन बागरे साहब यहाँ पर द क्रक्स ऑफ द मैटर इज द क्रॉपिंग पैटर्न। विदर्भ में जो क्रॉपिंग पैटर्न है सर, खानदेश में जो क्रॉपिंग पैटर्न है और जो मराठवाड़ा में क्रॉपिंग पैटर्न है, इट हैज टू चेंज। यू हैव टू चेंज अलॉन्ग विद द वेदर पैटर्न्स। द वेदर हैज चेंज्ड। कहीं कब फ्लड आ रहा है, कब सूखा पड़ रहा है, देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न टू इट। पिछले 8 साल के अंदर पूरा वेदर का पैटर्न चेंज हुआ है, इसलिए द क्रॉप्स आल्सो हैव टू चेंज। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी आपके सामने बात रखता हूं, जो दाल जो है नॉर्मल दाल जो हम खाते हैं ना सर, वी आर इंपोर्टिंग इट फ्रॉम अफ्रीका। वहां पर हम लोगों ने कई जगह पे कीनिया में, घाना में हमने बहुत लैंड खरीद ली है और वहां पे दे आर ग्रोइंग पल्सेस फॉर अस। सर विदर्भ में इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग कॉटन दैट कैन इजीली बी कन्वर्टेड टू ग्रोइंग पल्सेस, बट अनफॉर्चुनेटली आवर फार्मर्स हैव बीन ग्रोइंग कॉटन फॉर द लास्ट आई थिंक 5000 ईयर्स। इसका जिक्र तो सर महाभारत में भी आता है। महाभारत में भी 1800 किस्म की कपास है, तो वो विदर्भ से ही आती थी। But now nobody wants it. So don't you think, बागरे साहब, we have to look at that. अगर वो आप चेंज नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने पानी दे भी दिया, वो फिर भी सिर्फ कपास उगाएगा सर। और अगर ज्यादा पानी मिल गया, I hope it doesn't happen like it did earlier. 5-6 साल पहले, you know why the disaster took place. वहां पर इन्होंने शुगर केन उगाना शुरू कर दिया था, which is why the entire soil of Vidarbha got ruined. अब आप बोलें सर, प्लीज बागरे साहब। Sir, I agree with you that cropping pattern has to change and cropping pattern is changing.
आप अगर एग्रीकल्चर पे सिर्फ एक दिन डिबेट करेंगे तो आई कैन लिस्ट आउट लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज बीइंग डन फॉर एग्रीकल्चर इन विदर्भ मराठवाड़ा। सर आज इस लेवल पे आज एग्रीकल्चर में एआई का यूज हो रहा है। आप मतलब टू प्रेडिक्ट द वेदर, टू एडवाइज द फार्मर फॉर जी। क्रॉपिंग पैटर्न। और जो आप दाल का जो बोल रहे हैं सर, पहले मतलब कॉटन एक 7-8-9 महीने तक लिया जाता था। नाउ कॉटन का भी जो पीरियड है वो भी कर्टेल करने की बात हो रही है। और उसके साथ एक एडिशनल क्रॉप जो है, जब मतलब पानी का उतना जो कम, जैसा आपने राइटली बोला कि द पल्सेस डजंट रिक्वायर मच वाटर, That's right. so there can be an alternate crop. Sir, we are also working on that aspect in a bigger way. आप दूसरा And the देखिए, soil दिल्ली के works. शिवार के वहाँ पे कारण black या soil है, जो sir. योजना के कारण उसमें बहुत सी चीजें भी एडिशनली जोड़ी जा रही है सर। काली तो मेरा मिट्टी है, ऐसा सर, कहना वहाँ है, पे। एग्रीकल्चर में हम लोग सही में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। I hope. नानाजी देशमुख स्कीम है, सैचुरेशन होता है हर विलेजेस में। बजट में 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट दिया है, जिसमें से विदर्भ के काफी डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड है फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी। सर आई वर्क विद नानाजी देशमुख साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है सर, ये भी बता दूं मैं आपको। एनीवे वी विल टॉक अबाउट दैट एट सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम। अशोक यादव साहब, जहां तक उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत है उस विषय के बारे में जरा बताइए, क्योंकि वो दब जाती है बात। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भी एग्रीकल्चरल क्राइसिस है सर। क्या है कि बड़े बड़े फार्मर्स जितने हैं ना, उनका तो फायदा हो रहा है फर्स्ट क्लास तरीके से। जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स हैं, छोटे छोटे किसान जितने हैं, सबकी हालत खराब है। जो पट्टे पे काम करते हैं उनकी मतलब बॉन्डेड लेबरर से ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है उनकी। अशोक यादव साहब आप बताएं इसके ऊपर, अगर आप रोशनी डाल सकते हैं तो आई विल बी ग्रेटफुल। बोलिए सर। देखिए, फार्मर्स की स्थिति मोर ओवर पूरे कंट्री में खराब है। और आपने पर्टिकुलर यूपी के लिए पूछा, तो यूपी की स्थिति मुझे लगता है कि सबसे खराब से खराब राज्यों में से एक है उत्तर प्रदेश की स्थिति। जी। आपको बताऊं, मैं यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के लिए अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। लखीमपुर में एक गरीब महिला, वृद्ध महिला, अपने बेटे के साथ 4 दिन से लाइन में लग रही थी, 4 डेज क्यों उसमें लग रही थी। उसको खाद नहीं मिली, फर्टिलाइजर नहीं मिला, और उसके बाद पुलिस वाले उसके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, उसके बेटे के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। तो ये फर्टिलाइजर्स के लेकर के किसान हमारे 4-4 दिन 5-5 दिन लाइनों में लग रहा है, तब जाके किसी तरह फर्टिलाइजर्स मिल रही है। फर्टिलाइजर्स की उसमें क्वांटिटी कम कर दी गई, 5 किलो एक बार घटाया गया, 5 किलो एक बार घटाया गया। जो 50 केजी की बोरी थी उसको घटा के 40 केजी कर दिया। तीसरी बात, आप जो भी फार्मर्स के इनपुट हैं, इनपुट में जैसे आपको बिजली है, उत्तर प्रदेश में हमें लगता है कि महाराष्ट्र के बाद सबसे महंगी बिजली है। तो किसान का जो कॉस्टिंग आती है वो बहुत महंगा है, बिजली महंगी होने से। तो फर्टिलाइजर्स महंगे, बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेस्टिसाइड्स महंगे। तो ये सारी चीजें किसान के लिए हमेशा उसके विपरीत हैं जी। तो इसको लेकर के सरकार की मंशा क्या है कि सरकार, देखिए आपको याद होगा जब 3 किसान काले कानूनों के खिलाफ जब किसानों ने आंदोलन किया था दिल्ली के बॉर्डर पे, तो लगभग मोर देन 700 फार्मर्स आर किल्ड। Yes. वो मार दिए गए। उसको उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है। ये कोई नहीं कह सकता कि उसकी जिम्मेदार वो किसान है। उन्होंने अपने खेतों की रक्षा के लिए, अपनी फसलों की रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया और आखिरी में सरकार को झुकना पड़ा। और तीसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करती है। किसानों को 700 से ज्यादा किसानों की हत्या की जिम्मेदार मोदी सरकार, और इस हत्या की दाग कैसे धुलती है। चौधरी चरण सिंह का जिसका बंगला था, जिनके लड़के का अजीत सिंह का, उनके बंगले में से उनका जो मेमोरियल के सामान थे वो सारी सामान को उठा के बाहर फेंकवाई थी मोदी सरकार। और जब 700 किसानों की शहादत के बाद जब जरूरत पड़ी तो उनके पोते, जो हमारे यहाँ इसके नेता हैं चौधरी चरण सिंह के पोते, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, नाम भी याद नहीं रखना चाहता हम लोग। जी जी जी, अजीत सिंह जी के बेटे। जी हाँ बोलिए। जी जी जी। तो उनका जो है स्थिति है कि उनको मैनेज करने के लिए सिर्फ सिंबॉलिक रूप से चौधरी साहब को पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। वो अच्छी बात है, पुरस्कार दिया गया, लेकिन मंशा क्या थी? मंशा चौधरी चरण सिंह को सम्मान देने की नहीं थी। उनको सम्मान देना था तो उनकी सामान को उठा के बाहर नहीं फेंकते। मंशा थी कि कैसे अजीत सिंह को अपने पार्टी में लाया जाए, मंशा ये थी। अच्छा, तीसरी बात अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि खतरा परिवार को है। देखिए, खतरा परिवार को नहीं भाई साहब, खतरा डेमोक्रेसी को है। आप देखिए राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
जी। जो बिहार में कराया जा रहा है, जिसको जी, लेकर के जी। लगातार हमारे जी, इंडिया देखा। गठबंधन के लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एसआईआर के पीछे मंशा क्या है? वो स्पेशल इंटेंसिव उसका मंशा नहीं है रिवीजन का, उसका मंशा है कि एसआईआर के नाम पर स्कीम फॉर इंटेंशनल रिमूवल ऑफ नॉन बीजेपी वोटर्स, ये एसआईआर का मंशा यही है। ये स्कीम चला रही है मोदी सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से, स्कीम फॉर इंटेंशनल रिमूवल ऑफ नॉन बीजेपी वोटर्स। आप देखिए जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने भी कहा कि इससे वो डॉक्यूमेंट मेरे पास भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था, डायरेक्शन दिया था कि आधार कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को इसमें इंक्लूड किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया नहीं, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आधार को करें ये इसको मानेंगे ही नहीं। अब आप बताइए, जो एक जामाज पत्रकार अजीत अंजुम ने कैसे कैसे वहां वीडियो बनाए और सब फर्जी सिग्नेचर हो रहा है। बीएलओ बता रहा है कि ऊपर से आदेश हमें किसी तरह से फॉर्मेलिटी पूरा करके देना है। अभी 51-52 लाख वोटरों का दिखाया जा रहा है कि वो यहाँ पे है ही नहीं, उनके नाम काटे जाएंगे, बहुत सारे लोग मर गए और इसमें बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं। तो आप अभी 2024 में चुनाव जीते हैं ना राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी एंड अलायंस 30 सीट के लगभग जीती है बिहार से। तो क्या ये मरे हुए लोगों के बल पे जीती है या बांग्लादेशियों के भरोसे जीती है? ये किसके भरोसे जीती है? और ऑल ऑफ सडन 52 लाख लोग ये हुआ कि बाहर हैं, मर गए हैं, बांग्लादेशी हैं, फलाने, ये सब चीजें एक तरह से कहीं न कहीं चुनाव को निष्प्रभावी बनाने का एक प्लानिंग है। जैसे रसिया में है, चाइना में है, चुनाव होते हैं लेकिन चुनाव का मतलब नहीं रहता। इसी बात को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसकी महत्व को समझते हुए, इसी गंभीरता को समझते हुए एक सुझाव दिया था, एक नियम लगाया था कि इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पैनल में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई रहेंगे। तो इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि जब देश की बैकबोन, डेमोक्रेसी की बैकबोन तभी सुरक्षित रहेगी जब हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। लेकिन इस डेमोक्रेसी इस हमारे देश के बैकबोन पे हमला कर रही है मोदी सरकार। तो मैं कहना चाहूंगा परिवार किसी के खतरे में नहीं है, इस देश की अस्मिता खतरे में, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, और इसको बचाने की जरूरत सबको है। अब आगे जाके जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से तेज तर्रार तरीके से काम कर रहे हैं, वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, जो रिकॉर्ड लिए, पूरे रिसर्च किए पूरे देश में, यूपी के महिलाओं का सशक्तिकरण का जबरदस्त तरीके से रिपोर्ट आया कि ढंग से हो रहा है। तो उनका कहना है कि योगी जी का कहना है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उज्ज्वला, मिशन शक्ति और भर्तियों में पुलिस, होमगार्ड, टीचर्स में ज्यादा महिलाओं को और रिक्रूटमेंट ड्राइव किया जाता है। तो ये एक कारण है। तो क्या ये दिख नहीं रहा समाजवादी पार्टी को किस प्रकार महिला सशक्त हो रहा यूपी में? देखिए प्रदीप जी, आपने फुल टॉस बॉल दिया मुझे, मैं इस पे छक्का मारूंगा। महिला सशक्तिकरण, आपको अभी आज की ताजा खबर, गोरखपुर में जो हमारे महिला सिपाही जिनकी ट्रेनिंग हो रही है वो क्या बोल रही हैं, और 1-2 की संख्या में नहीं, तो एक तो एकोमोडेशन 350 का है, 350 का एकोमोडेशन है, 600 महिलाओं को, 600 बच्चियों को रखा जा रहा है, उनको ओपन एरिया में नहाने को बाध्य होना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितना शर्मनाक बात है कि आज के दौर में हमारी बेटियों को ओपन में नहाने को मजबूर किया जा रहा है। और उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही। आप महिला इंपावरमेंट, वुमेन इंपावरमेंट के नारा देते हो और मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस तरह से हमारी बेटियां, हमारी बहनें, इस तरह से उनके साथ अपमानजनक और शर्मनाक व्यवहार किया जा रहा है सरकार के लोगों के द्वारा, और वो मुख्यमंत्री जी का और उनकी सरकार कह रही कि हम वुमेन इंपावरमेंट पे काम कर रहे हैं। आप देखिए तमाम ऐसे डेटा मिल जाएंगे, एनसीआरबी के डेटा, कि वुमेन जो क्राइम अगेंस्ट वेमेन में उत्तर प्रदेश बहुत दिन तक नंबर 1 था। बड़े मुश्किल से इधर 1-2 साल से कुछ मतलब रिकॉर्ड उसका मेंटेन हुआ है। तो वुमेन एम्पावरमेंट और भाजपा, ये दोनों मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, एक साथ कभी नहीं आ सकते। और तीसरी बात आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस और क्या क्या बातें आप कर रहे थे। आप देखिए 1 प्रोडक्ट, उज्ज्वला, 1 डिस्ट्रिक्ट 1, हाँ, ये नाम देते हैं ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। लेकिन भाजपा में अंदर हो क्या रहा है, योगी सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जल माफिया। आपको पता होगा जल माफिया पूरा उत्तर प्रदेश में है, और ये गुजरात से आया है जल माफिया।
आप उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी पानी टंकियां धराशायी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो जल जीवन मिशन के तहत जो पानी सप्लाई करने की व्यवस्था है, वो नल से जल नहीं निकल रहा है, जल से धन भाजपा बना रही है। और ये बहुत ही शर्मनाक है। जब सरकार बदलेगी आप देखेंगे कि वो हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा करप्शन कभी नहीं हुआ। सड़कें खोद के छोड़ दी गई, पानी के पाइप डाल के छोड़ दिए गए, पानी के टैंक धराशायी हो रहे हैं। तो ओडीओपी की जगह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जल माफिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 लैंड माफिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सैंड माफिया। आपको याद होगा बांदा सदर का भाजपा विधायक, याद है ना, मुश्किल से 20-22 दिन की बात है। बांदा सदर का भाजपा विधायक का ओवरलोडेड ट्रक, बालू लदा हुआ ट्रक जा रहा था, एसडीएम ने रोक दिया। वो विधायक आता है पूरे अपने दल बल के साथ, एसडीएम को थप्पड़ मारता है, कोतवाली में बवाल करता है, अपना ट्रक पास करवाता है। तो भाजपा के लोग, भाजपा के विधायक ये सैंड माफिया, बालू माफिया बने हुए, इनके लोग जल माफिया बने हुए हैं, लैंड माफिया बने हुए हैं। और सबसे खतरनाक स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार कहती है इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट समिट इन्होंने गठित किया था, उसका अधिकारी जानते कौन था? अभिषेक प्रकाश। अभिषेक प्रकाश ने कई 100 करोड़ रुपए उगाही किया, और किसको किसको दिया होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन 5% का चार्ज लगा, वो अभी तक गायब है। वो कौन? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे कि भाजपा वाले उसको सेफ जगह रखे हुए हैं। तो आप देखिए, करप्शन को इन्होंने एक संस्थागत व्यवस्था बना दिया। एक संस्थागत करप्शन पूरे उत्तर प्रदेश में हावी है। 5% तो कहने की है, आप थाने में, कोतवाली में, तहसीलों में देखिए कितना परसेंट का रेट चल रहा है। सर यहाँ पर आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सर, छोटी सी बात है, उसके बाद मैं चाहूंगा उस पर डॉक्टर ढूने बात करें, एंड आई वुड लाइक समीर भाकरे साहब टू आंसर आफ्टर दैट। सर, जब आधार कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था, मुझे अभी तक याद है उसके ऊपर बहुत डिबेट हुई थी। व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह वांटेड टू इंट्रोड्यूस इट, बीजेपी ने अपोज किया था। फिर उसके बाद मोदी जी के आने के बाद आधार कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया। जब आधार कार्ड आया, उसका यह था कि दिस विल बी द एक्चुअल आइडेंटिटी प्रूफ फॉर इंडियन सिटीजनशिप। यह कहा गया था उस वक्त कि भारतीय नागरिकता इससे निर्णायक होगी, कि ये आपका टोटल डॉक्यूमेंट है, जस्ट लाइक दी सोशल सिक्योरिटी नंबर एटसेट्रा इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उससे आपकी एक एक चीज मालूम पड़ जाएगी कि आप कितना टैक्स भरते हैं, आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, आपका बिजनेस क्या है, आपके खिलाफ कितने केस हैं, कितने केसेस में आप वांटेड हैं, आप क्या हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, पूरी चीज हो जाएगी। अब क्या है कि अब पैन कार्ड भी आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं है, राशन कार्ड तो है ही नहीं, राशन कार्ड के ऊपर भी लिखा होता है ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ना राशन कार्ड के ऊपर लिखा होता है सर। वोटर्स आईडी कार्ड भी आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और आधार कार्ड भी नहीं है। तो सर है क्या, आप मुझे बताइए। अब बहुत लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है। अब पासपोर्ट में तो लिखा होता है इंडियन सिटीजन, चलो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल हु डोंट हैव अ पासपोर्ट, तो वो भारतीय नागरिक नहीं है क्या? वो कैसे प्रूव करे कि मैं भारतीय नागरिक हूं? आप बताएं सर। डोंट यू थिंक द गवर्नमेंट, मैं पॉजिटिव चीज ले रहा हूं ये, समीर भाकरे जी और अशोक ढोने जी इसके ऊपर जरा अच्छी तरह रिप्लाई करें। अशोक यादव जी के बोलने के बाद, आपको लगता नहीं है दैट द आधार कार्ड शुड बी मेड प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? दैट्स इट। अब आप बोलें सर। यादव साहब। राजीव जी 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 बोलिए बोलिए। नहीं, ये सवाल आपका मुझसे था? आपका आपसे था जी। देखिए, आधार कार्ड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि बायोमेट्रिक्स भी था जी। उसमें रेटिना का, फिंगरप्रिंट का, right. जो कि आदमी उसको चेंज नहीं कर सकता, Correct. जो कि फ्रॉड नहीं हो सकती, फेक नहीं हो सकती जी। आप उसको आप कह रहे हो कि ये इसको हम नहीं मानेंगे, इसके आगे आप मानोगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, जो संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी इसकी, उसने भी डायरेक्शन दिया था, लेकिन ये चुनाव आयोग करा, उसको हम नहीं मानेंगे। देखिए, नागरिकता डिसाइड करना अगर ये एमएचए का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो क्यों नहीं एमएचए? अब मोदी जी 2014 से हैं, अभी तक देश में नागरिकता डिसाइड करने का क्या प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया और वो कहां तक पहुंचा? आप अगर ये डिसाइड करना चाह रहे हो कि कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है, उसके लिए आपने क्या प्रयास किया? कि बिहार चुनाव से ठीक 2 महीने पहले आपने सपने में देखा कि नहीं हमें नागरिकता डिसाइड करनी है, तो आप शुरू कर दिए नागरिकता डिसाइड। अब लाओ ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। तो ये सब हरासमेंट करने का तरीका है राजीव जी, और इस कहीं न कहीं इस थ्रेट्स है, हमारे देश के डेमोक्रेसी के ऊपर थ्रेट्स है, हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर थ्रेट्स है, और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी थ्रेट्स है। और हमें उम्मीद है कि जो 28 तारीख को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर सुप्रीम कोर्ट
कुछ फ्रूटफुल डिसीजन देगा। I hope so too. Dr. Dhone, don't you think we should have one document which says कि भाई ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप भारत के नागरिक हैं? आपको लगता नहीं ऐसा होना चाहिए? ये कंफ्यूजन क्यों है? आप मुझे बताइए ना सर कि मेरे पास, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास वोटर्स आईडी कार्ड है, और फिर भी आप देश के नागरिक नहीं है। राजीव जी, सॉरी टू सो जी, ये आपको जाना। थैंक यू, नमस्कार सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सर जी। ढोने साहब, नहीं सर, जब ये आधार कार्ड निकालते हैं तो फिंगरप्रिंट्स, रेटिना, सब चीजें रेटिना, लिखी है, आई, रेटिना, हाँ, सब जी। सब चेक होता है। उसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी है, उसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का कुछ प्रॉब्लम रह सकता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। डेट ऑफ बर्थ कुछ लोग गलत बोल देते हैं या वो डाल देते हैं, लेकिन जब करेक्शन करने का रहा तो उसमें उनको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि भाई वो भी पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए। तो ये आधार भी कोई इतना आसानी से बनता नहीं है, पूरा छानबीन करने के बाद ये आधार बनता है, और एक आदमी के दो आधार नहीं रह सकते। करेक्ट। तो जब एक आदमी के दो आधार नहीं बन सकते, इसका मतलब ये वैलिड है, यानी ये यूनिक है। उसका हाँ यूनिक ही नाम ही है, उसमें यूनिक ही नाम लिखा है, तो ये रहना चाहिए, जरूर रहना चाहिए। लेकिन हमने देखा ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के वक्त भी कि जब उन्होंने बोले कि भाई रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए क्या है, तो उन्होंने आधार को मान्य नहीं किया था कि आधार है तो इसका मतलब है, ऐसा नहीं है। तो ये रहना चाहिए। तो ये जब आपका पूरा पूछ के डॉक्यूमेंट्स लेके तभी आधार बनता है ना, ऐसे ही नहीं बनता है। करेक्ट। तो जब हाँ, तो ये रहना चाहिए। दोनों साहब, और हाँ सर, दोनों साहब, आपका फेवरेट सब्जेक्ट पे आता हूं, आरएसएस। राहुल गांधी जी ने फिर कहा कि आरएसएस और सीपीएम मैं आइडियोलॉजिकल फाइट करता हूं, दोनों से इक्वली डिस्टेंट है और दोनों को बहुत तगड़े तरीके से फाइट करूंगा। आज भी उन्होंने कहा कि आरएसएस जिस प्रकार से टेक ओवर किया अपने एजुकेशन सिस्टम को, उनको एजुकेशन सिस्टम को मनुवादी बना दिया है। इट साइडलाइंस द दलित एंड द बैकवर्ड एंड द आदिवासी। तो कितना सच्चाई है इसमें? सर हमारे महाराष्ट्र में नागपुर यूनिवर्सिटी में एक सिलेबस में मनु का ये किया था कि मनु का राज्य कैसा था, मनुस्मृति कैसी है, ये शुरू किया था। जब ऑब्जेक्शन लिया तब उसको कैंसिल किया। ये चाहते मनुवाद लाना चाहते हैं। और आप बोलिए मुझे, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा बताइए जो मनुस्मृति के खिलाफ बोलता हो, कि मनुस्मृति गलत है ऐसा बोलता हो, और मनुस्मृति हम बिल्कुल पसंद नहीं करते ऐसा बोलता हो। तो ये बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते? ये मनुस्मृति के खिलाफ कभी बोलेंगे नहीं, तो इसलिए नहीं बोलते कि ये मनुस्मृति लाना ही चाहते हैं। ये इनके दिमाग में वही है। इनके जो गोलवलकर थे, इन्होंने संविधान को विरोध इसलिए किया था कि ये संविधान ये बराबर नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के हिसाब से संविधान नहीं बना, मनुस्मृति के हिसाब से संविधान बनना चाहिए, ऐसा उन्होंने खुल के बोला था। तो जब उनके जो विचार है, जो तो विचारधारा के हिसाब से वो बोल रहे हैं, और आप मुझे दिखा दीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता की मनुस्मृति के खिलाफ बोले तो हम मानेंगे। बड़ा नेता कोई है या आपने पढ़ी है RSS का कोई मनुस्मृति नेता? सर आपने तो पढ़ी होगी मनुस्मृति, आपने पढ़ी? हाँ पढ़ी हमने मनुस्मृति को सिर्फ पढ़ी नहीं है। और मनुस्मृति में क्या लिखा है सर? मनुस्मृति की 1236 वर्सेस जो हैं वो जेन्युइन है, बाकी 2500 जो हैं वो दोज आर लेटर इंटरपोलेशंस। जो ओरिजिनल मनुस्मृति है सर, उसमें जातिवाद का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, बाय द वे। नहीं सर, ठीक है, तो आप मुझे समझाइए सर कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का स्वराज्याभिषेक करने से महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने मना किया था, क्योंकि ये वो लोग लेटर इंटरपोलेशन वाले होंगे ना, नहीं बाद तो की फिर इंटरपोलेशन वाले होंगे। काशी से गागा भट्ट को लाए जी, और उन्होंने स्वराज्याभिषेक किया था। दुरुस्त बात है, किया, करेक्ट। हाँ, तो कोई दो राय नहीं। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने इसलिए नहीं किया कि मनुस्मृति के बहुत पक्के फॉलोअर है महाराष्ट्र के ब्राह्मण। यूपी वाले बेचारे इतने ये नहीं है, उनको भी 32 लाख स्वर्ण मुद्रा दिए तब कई किए, उन्होंने भी बोले। और वैसे भी वो काशी से हैं सर, काशी में तो हर हर महादेव हैं। हाँ, उनकी तो ना जात है ना पात है, ना आगे ना पीछे। इनका सनातन धर्म और हमारा हिंदू धर्म कुछ अलग है सर। ये शिवाजी महाराज का स्वराज्याभिषेक करने से इन्होंने इनकार कर दिया मनुस्मृति के हिसाब से। बाद में शाहू महाराज जो थे, उनको वेदोक्त मंत्र उनके लिए नहीं कहे गए थे, उनके साथ एक भागवत थे, वो उनके दोस्त थे, तो उन्होंने बोले कि ये जो पंडित जी आपका
जो पंडित जी ने उनका नौकर था, वो जी पूजा का काम करता था वो उनके दरबार में, उनके घर में। तो वो बोले ये गलत मंत्र पढ़ रहा है। तो जब उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये वेदोक्त मंत्र नहीं है। बोले क्यों नहीं है? तो बोले वेदोक्त मंत्र सिर्फ क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए है, शूद्रों के लिए नहीं है। तो बोले हम तो राजा है। आप राजा होंगे लेकिन आप कुंभी है, बोले आप शूद्र है। तो फिर कोर्ट में केस चली, फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया। तो ये सब ये बातें है सर। तो ये उस वक्त हार गए थे, महाराष्ट्र के ब्राह्मण लोग हार गए थे केस। कोर्ट ने बोला कि ये राजा है। तो फिर उस वक्त लोकमान्य तिलक थे, तो उन्होंने बोले कि चलो आप समझौता करते हैं। तो उन्होंने बैठक लिया और फिर उस वक्त ये बात चली कि भाई आप राजा हैं तो आपको हम क्षत्रिय मानते हैं। तो फिर शाहू महाराज ने कहा कि भविष्य में अगर कोई मुस्लिम राजा आया तो फिर उसका क्या करेंगे, उसको क्षत्रिय मानेंगे क्या? तो उस वक्त लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि वो ये बात उस वक्त के ब्राह्मण तय करेंगे कि उसको क्षत्रिय मानना है नहीं मानना है। जी और ये पुरानी बातें हो गई। अभी नई बात, ये कोल्हापुर के जो संभाजी राजे हैं, जी उनकी जो पत्नी नासिक में आई थी, उनके लिए भी पुराणोक्त मंत्र कहे गए थे। तो ये तो आज भी चल रहा है। और मनुस्मृति अगर अच्छी रहती तो बाबा साहब अम्बेडकर इसको जलाते नहीं थे। ये अभी भी चल रहा है सर, मनुस्मृति तो चल ही रही है अभी। जी राइट। सो लेट मी गो अक्रॉस टू भाकरे साहब। भाकरे साहब वांटेड टू से समथिंग सर। मुझे तो डॉक्टर डोने साहब जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री पढ़ते हैं। नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं सुनिए है सुनिए डोने सर, साहब, आपके हकीकत है। बीच में मैं नहीं बोला, मैं, आप बहुत व्हाट्सएप गलत चीजें बोल रहे थे। सुनिए हाँ, आप, ठीक है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने हिंदवी स्वराज का नारा दिया था और उन्होंने 18 पगड़ जाति को साथ में लेके हिंदवी स्वराज का नारा दिया था। शिवाजी महाराज के सेना में सब ब्राह्मण थे, बाजी प्रभु देशपांडे भी उनके लिए लड़े थे। तो आप ये जो गलत सलत बता रहे हैं ना, बाजी तो आप प्रभु WhatsApp देशपांडे यूनिवर्सिटी ब्राह्मण नहीं थे सर। नहीं, मेरी बात अभी पूरी सुनिए, पूरी भाकरे सुनिए। साहब, बाजी प्रभु सुनिए, देशपांडे सुनिए। ब्राह्मण नहीं राजीव जी थे। देखिए कैसे ये करते हैं बीच में, अगर मैं इनको बोलिए, सच्चाई बोलिए। बताने दोनों की साहब बहुत कोशिश सुनिए, करते दोनों हो साहब रहा है। सुनिए ना, आपका सुन लिया उन्होंने। समीर बाकी सब बोलिए। आज छत्रपति शिवाजी महाराज कोई जातिवादी व्यवस्था के ये नहीं थे जो आप उसको जाति में बांटना चाह रहे। ये कांग्रेस पार्टी है और ये जो शरद पवार साहब की पार्टी है, इन्होंने महाराष्ट्र में जातिवाद लाया। कोई ब्राह्मण बोलते, कभी ओबीसी बोलते, कभी इससे। तो ऐसे समाज को बांटिए मत। आप अगर मनुस्मृति को क्रिटिसाइज करते हैं, अगर उसमें कुछ गलत है तो सबने क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन आपकी हिम्मत है क्या कि शरिया में कोई अगर गलत है, कुरान में कुछ गलत है, तो आपकी हिम्मत है क्या कुछ क्रिटिसाइज करने में? हिंदू धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग इंप्रूवमेंट करने के लिए हर वक्त तैयार रहते। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत है कि अगर कुछ गलत काफिर के बारे में बोला जा रहा है या जिहाद के बारे में बोला जा रहा है, आप ओपनली क्रिटिसाइज करें? यहाँ सिर्फ जातिवादी ब्राह्मण बोलना या मराठा बोलना या ओबीसी बोलना, इससे सर आपका, इसलिए आपकी पार्टी आज इतने निचले स्तर पर आ गई है क्योंकि आप जातिवाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद में फंसे हुए हैं। आपके कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है, कभी बोलते हैं मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, कभी बोलते हैं मैं यहाँ हूँ, कभी मैं जन्मेधारी ब्राह्मण हूँ। तो आप तो पहले बताइए ना कि आपकी पार्टी कौन सी फिलोसॉफी फॉलो करती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को फॉलो करती रहती तो आपने बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का इतना इंसल्ट नहीं किया रहता ना, उनको 43 साल रुके रहते भारत रत्न देने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जब एक्सपोज हो जाती है तो ये जातिवादी इस पे आती है। और अगर इनको छत्रपति शिवाजी महाराज का सही इतिहास पढ़ना है तो हम उसको काफी किताबें भेज देंगे। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य जैसे संभाजी महाराज ने बढ़ाया, वैसे पेशवा लोगों ने भी बढ़ाया है। तो वो पेशवा जो थे वो मराठा साम्राज्य को ही बढ़ा रहे थे, तो वो शिवाजी महाराज का ही अनुकरण कर रहे थे। तो आप एक सीधी सीधी हिस्ट्री जो है ना, वो पहले सही तरीके से लेकिन सर बाजी प्रभु जो थे वो आप अगर इस्तेमाल करेंगे। देखिए राजीव जी, मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, इनके हिसाब से जवाहरलाल नेहरू यही स्वतंत्र सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, ये सब, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये कोई नहीं थे। अगर जवाहरलाल नेहरू जी का आप जेल देखे तो 5 स्टार होटल जैसा है, और वीर सावरकर की कोठरी देखे तो कैसा है। चंद्रशेखर आजाद जी को कभी फांसी हुई, जवाहरलाल नेहरू जी को अपॉइंट ब्रिटिशर करके गए। तो एक किस तरीके की हिस्ट्री हमको बताना चाह रहे। और उस वक्त हमने जब धर्मवीर संभाजी महाराज के बारे में, संभाजी नगर का नाम बदलने के लिए तो कांग्रेस पार्टी है, औरंगाबाद का उन्होंने नामकरण रखने के लिए कोशिश की। तो आज तक जो भी हिस्टोरिकल रॉन्ग्स है ये भाजपा ने करेक्ट किए, चाहे वो जाति। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं,
कि संघ में कोई जातिवादी व्यवस्था नहीं है। आप संघ को भी ठीक से पढ़े, 100 साल से संघ है और पूरा सर्वव्यापी संघ है। और देखिए डोने जी, अगर आइडियोलॉजी में कोई ये नहीं रहता ना, तो इतने भारत के लोग नहीं जुड़ते थे, इतना समाज का हर वर्ग नहीं जुड़ता था। ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, आज राष्ट्रपति जी जो है आदिवासी समाज से आती है, तो हमारा समाज का पूरा एकत्रीकरण है। आपके जैसे नहीं है कि एक गांधी परिवार का ही मतलब जवाहरलाल जी के इंदिरा गांधी जी बनेंगी, फिर राजीव गांधी बनेंगी, फिर सोनिया गांधी बनेंगी, फिर राहुल गांधी बनेंगे, अब प्रियंका गांधी जी के बेटे बेटियां बनेंगे। तो ये परिवारवाद नहीं है, ये सामाजिक हमारा समीकरण है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ये बोलते नहीं है, मोदी जी ने करके दिखाया। इसलिए आप 3 इलेक्शन में कंटिन्यूस 100 के नीचे आए हैं और महाराष्ट्र में भी आप 4थे नंबर की पार्टी हो गई है। तो आप अगर ये जातिवाद फिर से फैलाने की कोशिश करेंगे तो आपकी पार्टी महाराष्ट्र जी, बोलिए डोने साहब। आज ही आपको बता रहा हूँ। डोने साहब बोलिए आपको प्लीज। बाजी प्रभु देश पांडे का बता रहे थे बजाज साहब। जी, चंद्रसेनी कायस्था प्रभु, हाँ सीकेपी। जी हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, चंद्रसेनी नहीं, ठीक कायस्था है प्रभु। सर। ये इन्होंने जो बोले, ठीक है देखिए जी। ये तो अभी जो बोल रहे हैं इन्होंने कि ये परिवारवाद है। देखिए जब सर तक परिवारवाद और जातिवाद दोनों बोला। जाति नहीं, ठीक है, परिवारवाद की बात बोलता हूँ। जी। जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवित थे उस वक्त तक इंदिरा गांधी कोई मंत्रिमंडल में नहीं थी, सांसद नहीं थी। जब उनके बाद पंडित नेहरू के बाद कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री बने जी। और लाल बहादुर शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी मंत्री थी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो लाल फॉर बहादुर- आईएनबी, हाँ, इंफॉर्मेशन तो- एंड ब्रॉडकास्टिंग। हाँ, मिनिस्टर ऑफ लाल स्टेट। बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी बनी। जी। यानी पंडित नेहरू ने डायरेक्ट उनको नहीं बनाया। और इंदिरा गांधी जब थी प्रधानमंत्री तो और उनके proprietary रहते concern नहीं, उनके इन्होंने नहीं रहते बनाया। राजीव देश गांधी आपका नहीं है, प्रधान कोई देश मंत्री नहीं थे। जनता का है, जनता डिसाइड करेंगी। जवाहरलाल तो नेहरू जी जनता ने decide दिया करेंगे कौन उनको, बनेगा। जनता ने दिया मैंडेट, जनता ने ही दिया था उनको मैंडेट। तो जब देखिए पंडित नेहरू ने कोई अपॉइंट नहीं किया था इंदिरा गांधी को। ये पंडित नेहरू के बाद अपने ये लाल बहादुर शास्त्री बने, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी बनी। पंडित नेहरू ने नहीं लाया था उनको, और इंदिरा गांधी ने भी राजीव गांधी को नहीं लाया था। इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद कांग्रेस वालों ने बोले कि आप बनो, तो कांग्रेस के नेताओं ने उनको लाया था, इंदिरा गांधी ने नहीं लाया था। और ये राजीव गांधी के मृत्यु के बाद सोनिया गांधी नहीं बनी। सोनिया गांधी के पास कांग्रेस से सब लोग गए थे कि आपके कांग्रेस बगैर पार्टी नहीं को होगा, 75 साल में आप एक आइए। परिवार लेकिन के उस अलावा वक्त कोई नहीं मिला। भी राजीव गांधी एक के मृत्यु परिवार के के बाद भी अलावा नरसिंह राव कोई नहीं बने, मिलता है। सीताराम केसरी सीताराम अध्यक्ष केसरी बने आपको और दिया था कांग्रेस के नरसिंह राव बाहर। प्रधानमंत्री बने। कहाँ है ये? नरसिंह राव जी कांग्रेस के अध्यक्ष जितने मतलब गांधी अब्दुल फैमिली शरीफ से को बने आपने उससे कांग्रेस ज्यादा तो पार्टी बाहर के के बने कार्यालय में नहीं जाने दिया। इस तरीके की आपकी राजनीति है परिवारवाद के लिए। आपके पास 75 साल में कोई नेता ऐसा पैदा नहीं हुआ गांधी परिवार के अलावा जो आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करे। अब ये कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? अरे तो मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्शन जीत के अध्यक्ष बने हुए हैं सोनिया और गांधी जी आपके ने पार्टी किया का है। अध्यक्ष नॉमिनेटेड रहता है। कोई सोनिया इलेक्शन गांधी होता जी है? ने किया है ना। इलेक्शन हुआ, वो अपने आप ही शशि देखिए थरूर इलेक्शन कैसे और ये होता लड़े है। एक दूसरे के खिलाफ और जी। जीते। इसके पहले भी सीताराम केसरी जो बने थे, सीताराम केसरी, शरद पवार, राजेश पायलट, इनके चुनाव हुआ, उसमें सीताराम केसरी इलेक्शन जीते थे, इलेक्शन के द्वारा जीते गए हैं। लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट देके उनको तो जिताया सीताराम था। केसरी जी को तो आपके ऐसा नहीं, कार्यकर्ताओं ने क्यों बाहर फेंक दिया अगर चुने हुए अध्यक्ष थे तो? सब चुने हुए अध्यक्ष है। अभी ये भी चुने हुए अध्यक्ष सोनिया है, गांधी को खड़गे लाने के साहब लिए भी चुने हुए अध्यक्ष है। केसरी जी को बंद कर दिया गया था कमरे में। देखिए कांग्रेस के लोगों की और इस देश के जनता का गांधी परिवार पे विश्वास है। इसीलिए गांधी परिवार पे इस देश की जनता का विश्वास है, लोग उनको मानते हैं। इसीलिए कांग्रेस के नेता सब जाके उनको बोलते हैं कि आप ही नेता बनो, आपके नेतृत्व में हम काम करेंगे, क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं। यही है बाकी साहब- कांग्रेस के नेताओं की भी मजबूरी, इसीलिए है क्योंकि इस देश की जनता गांधी परिवार के साथ है, उनका बलिदान रहा। भारतीय जनता पार्टी के एक भी आदमी का कोई बलिदान नहीं है, कोई नेता का बलिदान नहीं है, ना आरएसएस के किसी नेता का बलिदान है। आपको तो लोकमान्य तिलक भी हमारे से लेना पड़ता है, कांग्रेस से। ये जो है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस से है, वो सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस से है, और वो सब पार्टी का अम्ब्रेला ऑर्गन, ये सब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और अपने ये सुभाष चंद्र बोस, इनके नेता थे पंडित नेहरू, इनके सबके नेता थे पंडित नेहरू। बर्खास्त करके थे, ये स्वर्गीय महात्मा गांधी जी ने कहा है। आपकी पार्टी कोई परिवारवाद नहीं थी,
ये कांग्रेस पार्टी आजादी के पहले की अलग थी, उसमें सभी लोग समाज के हर वर्ग इस के देश लोग के जनता ने उनको जिताया बहुत बार। इंदिरा गांधी को जिताया, राजीव गांधी को जिताया, सोनिया गांधी को जिताया, लोगों ने जिताया। Sir, yesterday, gentlemen, yesterday we had Javed Akhtar साहब on our show, the writer. उन्होंने दो चीजें कही, बहुत जबरदस्त चीजें कही, एंड एक तो थी कि भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, एंड वी हैव टू सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर. दिस इज व्हाट जावेद अख्तर साहब सेड. एंड अनदर थिंग व्हिच आई डिडंट नो, बाय द वे, आई एम श्योर यू मे बी आप लोग जानते होंगे, मुझे मालूम नहीं है, उनके परदादा का नाम था फजले हक खैराबादी, जावेद अख्तर साहब के. ही वॉज अ लीडर ऑफ द 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो वीर सावरकर साहब ने कही ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. सर, उनको काला पानी की सजा हुई थी, मालूम है आपको? अंग्रेजों ने उनको अंडमान में सेल्यूलर जेल में भेज दिया, वो वहीं मर गए, उनका इंतकाल भी वहीं हुआ. आज भी कोई भी अगर वहां पर जाएगा सेल्यूलर जेल में, आप पूछ लें खैराबादी की कब्र कहां है, फजले हक खैराबादी की कब्र कहां है, इट इज राइट देयर. सेल्यूलर जेल के आगे जो कब्रिस्तान है, ही इज बेरिड राइट देयर. तो मेरा ये कहना है सर दैट आई एम सो अमेज्ड दैट समबडी लाइक जावेद अख्तर, हिज फादर जानेसार अख्तर साहब, हिज अंकल मजाज लखनवी, वो मजाज साहब का आपने शायद गाना भी सुना होगा, ऐ गमे दिल क्या करूं, वो उन्होंने लिखा था. He has never ever boasted about it. We came to know about it only yesterday. So I am saying India is full of such gems all over who need to be respected. Like for example today, चंद्रशेखर आजाद साहब का जन्मदिन है सर. चंद्रशेखर आजाद जी को किस प्रकार हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कहां कहां बच्चों को उन्हें सिखाना चाहिए. Don't you think we should make more efforts to do that, sir? ढोने साहब क्या बोलते हैं इसके बारे में आप? सर, ये जो पूरे स्वतंत्रता सेनानी थे, हम तो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, और उसमें से करीब करीब 90%, 95% तो सब कांग्रेस से जुड़े हुए थे. अच्छा, ठीक है. इनके जो आरएसएस के लोग, मुझे बताइए कि कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, एक कोई नाम बताइए. उल्टा मैं बोलूं आपको, मेरे पास चश्मदीद गवाह उस वक्त के, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्रांति सिंह नाना पाटिल जो है, क्रांतिवीर नाना पाटिल जो है, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रति सरकार बनाई थी. उनके साथ जो काम किए क्रांतिवीर नागनाथ अन्ना नायकवाड़ी सांगली के, उनके साथ मैंने काम किया. उन्होंने बताया, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. उन्होंने खुद बताया कि उस वक्त हिंदू महासभा के लोग और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर बता रहे थे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहां छुपे हुए हैं. ये बताने का काम ये लोगों ने किया था. और ये तो मुस्लिम लीग के साथ बैठ गए थे हिंदू महासभा के लोग. सावरकर जो थे, इनकी हिंदू महासभा, ये तो अंग्रेजों के साथ बैठ गए थे. हिंदू सरकार भी महासभा बना ना, दी. बाकी साहब wants to answer that. बाकी साहब बोलिए, आते तो तिरंगे को भी नहीं मानते थे सर. आप रिप्लाई सुनिए ना. बाकी साहब, दोनों साहब रिप्लाई सुनिए. बाकी साहब बोलिए. डॉक्टर ढोने जी, आपको मैं 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा कि आज भारत का विभाजन क्यों हुआ, क्यों जवाहरलाल नेहरू जी और जिन्ना ने ये तय किया कि भारत का विभाजन हो. कांग्रेस पार्टी उस वक्त अगर इतनी नरसंहार हुआ है, पूरे सवाल सुन लीजिए पहले. अगर उस वक्त इतना नरसंहार हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी अगर बोलती है कि आजादी की लड़ाई में हम थे, तो क्या आप लाखों करोड़ों लोगों का जो नरसंहार हुआ है आपके गलत डिसीजन के कारण, महात्मा गांधी जी के डिसीजन के कारण और जवाहरलाल नेहरू जी के डिसीजन के कारण और जिन्ना साहब के डिसीजन के कारण, आप मानते हैं क्या कांग्रेस पार्टी उसकी जवाबदारी लेगी? क्या विभाजन की जवाबदारी कांग्रेस पार्टी लेती है? क्या करोड़ों लोगों का नरसंहार हुआ उसकी जवाबदारी लेती है क्या? और आपको मैं और एक पूछना चाहता हूं कि अगर ये 60-70 साल में हिस्ट्री में सिर्फ ये क्यों आपके लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन जो है रोबिला थापर टाइप के जो लोग, उन्होंने सिर्फ ये ही बताया कि जवाहरलाल नेहरू जी का कैसा हुआ, महात्मा गांधी जी का कैसा हुआ, कभी भगत सिंह के बारे में, कभी वीर सावरकर के बारे में, कभी चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्यों बच्चों को नहीं पढ़ाया गया? हमारे हिस्ट्री में हमको अकबर पता है, औरंगजेब पता है, हर चीज पता है. हमको ना चोलास पता है, ना गुप्तास पता है, ना मौर्यास पता है. इनका 300 साल का मुगल साम्राज्य है और 5000 साल का हमारा इतिहास है, वो कभी पढ़ाया नहीं गया. तो कांग्रेस पार्टी जो है ये एक पूरी इस्लामीकरण के तरफ पूरे देश को ले जा रहे थे और हिंदू समाज को बांटने के लिए इन्होंने हिस्ट्री भी ऐसी लिखी है. आज जब हिस्टोरिकल ब्लंडर्स करेक्ट हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी तिलमिला जाती है, क्योंकि उनको पता है अभी सही हिस्ट्री सामने आ रही है
जवाहरलाल नेहरू जी का प्रिजन दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है बाप रे, आज तो ये कोई दिल्ली का 5 स्टार होटल है। तो आज जब हमारे बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाएगा, उनके जो असली हीरो है, सुभाष चंद्र बोस जी को आपने कभी आने नहीं दिया पटल पे, आपने लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध मौत है उनके बारे में कभी बात नहीं की, आपने भगत सिंह जी के बारे में कभी बात नहीं की, आपने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को 2-2 चुनाव हरा है। तो आपने सिर्फ ये कोशिश की कि एक फैमिली का राज इस देश पे रहे। तो वेरी सॉरी टू से सर, इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, बट वी हैव फॉरगॉटन आवर हीरोज बिकॉज ऑफ द जो हिस्ट्री इन्होंने गलत तरीके से लिखने की कोशिश लेकिन डोने साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज एक्सपोज हो रही है और डॉक्टर डोने साहब की जो पार्टी है पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। तो डोने साहब, कोई चीज बची नहीं है। ये एक पार्टी और एक परिवार, बस 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, इनका यही नारा है। लेकिन सर एक सेकंड, बागरे साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दिस रियली इज द लास्ट क्वेश्चन सर। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेंज इवेंट्स, वियर्ड थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड इन हिस्ट्री, थिंग्स व्हिच आर वेरी डिवाइसिव। तो उनके बारे में याद करने का फायदा क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल, ये इट इज हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड सर। अशोका द ग्रेट, जब उन्होंने राज्य संभाला तो ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने 100 भाइयों का कत्ल किया, 100 सन्स। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसारा को किस तरीके से मारा, इट इज रिकॉर्डेड कि कैसे पहले उसका अंगूठा काटा, फिर अगले दिन उंगली काटी, फिर ये किया, ये किया, ये किया। क्या हमें सिर्फ ये सब याद करना चाहिए या हमें यूनिटी याद करनी चाहिए? क्या हमें ये याद नहीं करनी चाहिए कि द चोलास, द चालुक्यास, द पांडास, द पालास, they had such a huge maritime empire, पूरा सर रिस्पेक्ट टू यू, कंपुचिया से लेकर के बारे में पढ़ा है। आप बोल रहे हैं ना, आप मुझे बताइए चोलास वगैरह के बारे में कितना पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया सर। वो उसके बारे में तो डिटेल हम मिले हैं। वो विलियम डैलरिम्पल ने किताब लिखी है द गोल्डन रोड, उसको पढ़िए सर। पढ़ी है मैंने, वो पढ़ी है सर, देखने राइट अप टू जापान। सर आज ही ये शो के पहले प्रदीप जी और मैं शो के पहले बात कर रहे थे सर, हनुमान जी का एक फॉर्म है चाइना में, उसको वुकोंग बोलते हैं। देयर इज अनदर वन इन जापान, अगेन अनदर फॉर्म ऑफ हनुमान जी। ये लोग, यस सर, दिस इज द सेम बुक, यस। सो ऑल आई एम सेइंग सर, व्हाई बोला सर ये सब मुझे क्यों नहीं पढ़ाया गया जब मैं स्कूल में था? ये पढ़ाना चाहिए सर। ये सर कांग्रेस पार्टी को आपने सवाल पूछना चाहिए। मैंने वही पूछा हूँ, डॉक्टर डोने से पूछ रहा हूँ। चोरा चेरा पंड्या, चोला चेरा पंड्यास का पूरा एम्पायर राइट टू आप वियतनाम, बाली, इंडोनेशिया, आज बाली में जाओगे तो सब हनुमान जी के टेंपल है वहां पर, पूरे बाली में। फिनिश्ड इन 2 पैराग्राफ्स। यस सर, आपको बताओ राहुल गांधी को कहते हैं कि कुछ लोग आरएसएस के, जी आरएसएस कुछ के लोग क्या? आरएसएस के कांग्रेस में भी है जी, वो यहाँ पे है। वैसे ही ये जो लेखक थे, कौन थे लेखक? पहले जरा ढूंढिए उनके नाम। अपने कौन हिस्ट्री थे ढूंढे जिन्होंने सर, लिखा? सुनिए सुनिए सर, रोमिला थापर इज द सिस्टर ऑफ मैं मानता हूँ आपकी बात को कि इतिहास जो है, जैसा इतिहास बराबर दिखाना चाहिए था, बट ये जो है सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी, वो फौज में 3 बटालियन थी, उसमें एक गांधी जी के नाम से थी और एक नेहरू के नाम से थी। जी थी, और एक रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी और पंडित नेहरू को और नेता एक रानी मानते थे। लक्ष्मीबाई भी थी, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। हाँ, जी, तो थी, correct उसमें है। पंडित नेहरू के नाम से थी और गांधी जी के नाम से थी। इनफैक्ट फादर ऑफ द वो नेशन, नेता मानते थे गांधी जी को और पंडित नेहरू को। सर, और राष्ट्रपिता का और टाइटल भी सुभाष दिया चंद्र था। बोस की लड़की को पंडित नेहरू ने बहुत मदद किया, अनीता लेकिन पैफ। कांग्रेस ने इतिहास अनीता बताया पैफ। नहीं। अनीता कांग्रेस पैफ। की ये गलती है। जी गलती है। राजीव गांधी की ये गलती है ज्ञानी कि जैन उन्होंने, सिंह, राजीव गांधी की ये गलती रही कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को खर्च फॉरेन भेजा इलाज के लिए, लेकिन बताया नहीं। तो वो तो ये अटल जी ने बता है, दिया ये ना तो खुद। गलतियां हुई कांग्रेस से, सर, वो जो अटल जी ने किया खुद वो बता बताया दिया। नहीं। I want to ask Samir Bakre साहब one final question is, you know, महबूबा मुफ्ती जी ने राहुल गांधी जी को एक चिट्ठी लिखा है। It says Muslims are living under fear. Muslims are living under fear, fear of victimization, fear of dispossession, fear of disempowerment. हम यहाँ पर 1947 के बाद इसलिए रुके, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक वादा था, फेथ था। हाउ डू यू सी दिस बाकरे साहब? क्या मुस्लिम्स आर लिविंग अंडर फियर? सर एब्सोल्युटली नॉट। आप देखिए पहलगाम हमले के पहले 2.5 करोड़ लोग टूरिस्ट वहां गए थे। वहाँ के पूरे हमारे कश्मीरी जो भाई लोग हैं, इनका बहुत अच्छे से बिजनेस चल रहा था। उन्होंने बहुत खुश थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, टूरिज्म आ रहे,
और अगर महबूबा मुफ्ती जी ने अगर कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी लिखी है तो उन्होंने पहले तो ये पूछना चाहिए कि भाई ये कश्मीर का प्रॉब्लम जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों क्रिएट किया, क्यों वो यूएन में ये चीज लेके गए, क्यों उन्होंने सरदार पटेल जी को रोका कि आर्मी जो कबाली आए थे पाकिस्तान के, उनको जब हमारी आर्मी खदेड़ रही थी जो आज पीओके करके जाना जाता है, तभी हमने ले लिया रहता। तो कश्मीर का जो प्रॉब्लम है ये देन कांग्रेस पार्टी की और ये जवाहरलाल नेहरू जी की है। तो अगर महबूबा मुफ्ती जी ये पूछ रही है कि हमारी अगर फियर है तो ये फियर के बारे में गलत मत पूछे, पहले तो उनको सवाल पूछने चाहिए कांग्रेस पार्टी से कि आपने ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया, आपने आपके जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो बिल्कुल सर ये गलत बात फैलाई जा रही है। आज वहां भी फिर से टूरिज्म वापस आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। जैसे जो चुने हुए मुख्यमंत्री है वहां के फारूक अब्दुल्ला, अपने जो अब्दुल्ला साहब है, उमर अब्दुल्ला साहब, उनको पूछिए, वो तो क्लियर बोल रहे हैं, हर फंक्शन में रहते हैं मोदी जी के, और कांग्रेस पार्टी को खरी खोटी सुना रहे। तो वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, रेलवे हो रही है, ट्रेन हो रही है, तो मोदी साहब के रेजिम में हो रही है। हर कश्मीरी फ्री है, हर कश्मीरी अपना बिजनेस कर रहा है। वो पीओके के लोग रो रहे हैं कि हमको भैया हम हिंदुस्तान में रहते तो अच्छा होता, मोदी जी हमारे लीडर रहते तो अच्छा होता। सो दीज आर ऑल थिंग्स फॉर द गैलरी। महबूबा मुफ्ती जी की राजनीति अब खत्म हो चुकी है, और राहुल गांधी को लिख के क्या फायदा है, ना उनके पास विजन है, ना सरकार है, ना कोई दिशा है, तो क्या करेंगे राहुल गांधी। तो मेरा ऐसा मानना है कि महबूबा मुफ्ती एक भटकी हुई पॉलिटिशियन है, उनको कोई काम नहीं बचा इसलिए सब लिख रही है। जी, आप कुछ आपकी कहना साथी चाहेंगे थी इस वो, पे डॉक्टर? आपकी भारतीय जनता पार्टी की साथी थी, कांग्रेस की कभी साथी नहीं रही वो। थी वो सर, पहले सर ऐसा मत उनके बोलिए साथ सर। सरकार बनाई थी सर उन्होंने। मुफ्ती साहब आपके प्रेसिडेंट थे जम्मू एंड कश्मीर के, सर ऐसा मत बोलिए। ही वाज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मुफ्ती वो पुरानी मोहम्मद बात है, वो जब उनकी पार्टी बनी डॉक्टर उनके साहब अपने साथ हिसाब से सरकार हिस्ट्री बनाई लिखते हैं थी। सर। सर क्या बोल रहे हैं सर, मैंने उनका खुद इंटरव्यू किया है कितनी बार, और ही यूज्ड टू सर्व द बेस्ट ब्रेकफास्ट। श्रीनगर में जो बेस्ट ब्रेकफास्ट होता था वो मुफ्ती साहब के यहाँ होता था, यानी आपके कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में। अभी भी जो आपका कांग्रेस का हेडक्वार्टर है बाय द वे, बहुत ब्यूटीफुल है, गुपकार रोड पे है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गुपकार रोड, वहां पर है। इट इज सो ब्यूटीफुल, कहने की हद नहीं सर। देखिए कभी जाकर के, पता नहीं आप श्रीनगर गए कि नहीं गए। अभी भी कांग्रेस का ऑफिस है वहां पे, 2-3 नहीं सर, हम तो बहुत डर लगता है हमको, अभी भी हमको बहुत डर लगता है कश्मीर जाने को। अभी डर लग अभी डर लग रहा है। अभी डर लग रहा है। सर मैं आपको एक चीज बताऊं बाय द वे, वैसे आप अभी जा भी नहीं पाएंगे। पहलगाम जो है, यू विल बी ग्लैड टू नो समीर बागरे साहब, पहलगाम में आपको होटल रूम नहीं मिलेगा अगले 1 महीने के लिए बुकड है। बुकिंग्स आर बैक अप, 110% बुकिंग्स हैं पहलगाम के हर होटल में, ये आपको मैं अभी बता दूं। इतने ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं अभी वहां पे। Well, gentlemen, that's it. Fantastic. That's all we've got for you in tonight's show. Thank you very much. Thank you very much. Thank you both of you for joining us. Namaskar. Jai Hind. Thank you. Well, that was nice. And and it is absolutely true, Pradeep ji. The fact remains that as far as people like Ramila Thapar are concerned, Bipin Chandra You Sahab used are to talk concerned, Irfan Habib also. and Irfan Habib, he was the head of the ICHR, Indian Council of Historical Research. I mean, as far as they are concerned, they didn't even look south. मतलब they didn't even look beyond the Vindhyas के southward देखा भी नहीं, because they were so obsessed with what was happening. और दूसरी चीज़ है, now for example, it's a very very simple thing. चलिए, मैं मांगता हूँ, चलो आपने मुगल एम्पायर के बारे में बात करिए, तो why didn't you talk about things like say the Battle of Sarai Ghat, when a huge Mughal army was destroyed by the Ahams, that is the Aham kingdom of Assam. They destroyed the entire Mughal army, consisting of God knows how many Turks, how many Arabs, how many Uzbeks, and of course Rajputs. They were all massacred. They came back with exactly 50 horses. 1 लाख की फौज जो है, सिर्फ 50 के 55 लोग वापस आए उसमें। तो ये सब सिखाना चाहिए था ना। एंड बाय द वे, दैट हिज नेम इज Phukan, some Phukan. I'm so sorry, I should have remembered. He is the hero of Assam. आज की तारीख में भी called the hero of the battle of Sarai Ghat, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। ये आपने क्यों नहीं पढ़ाया? आप पानीपत पढ़ा रहे हैं, जहां जहां पे हम लोग आ रहे हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी हार गया, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अपना क्या है वो दिल्ली का जो राजा था सर, हेमू हार गया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा हार गए। वो आप पढ़ा रहे हैं फर्स्ट क्लास तरीके से। बैटल ऑफ प्लासी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। जहां जहां पर हिंदुस्तानी जीते हैं या यहाँ की फौजें जीती हैं, वो आप नहीं पढ़ा रहे। आई मीन Sir, criticism तो है। Actually, when you सही go है। out of this country to the southeast countries, आप Yeah, चाहे Southeast इंडोनेशिया Asia में जब जाओ, जाए।
मलेशिया जाओ, सिंगापुर जाओ, parts of China जाओ, हांगकांग जाओ, there you find so beautiful temples. All of Indian gods, Hindu Now gods. it's full of Indian gods and not recently constructed. Way that is, they've been staying and there from in. Like Bangkok has its, Thailand has its own Ayodhya. Yes. Name And is, look and the at- King Ram. Sir, look at Angkor Wat. Yes. Lachit Borphukan, that was his name. Lachit Borphukan, and it was a battle fought in 1671 between the Mughal Empire and the Ahom Kingdom. By the way, the Mughals never looked at Assam again. After that, they never came back. The Ahom said, "You come back over here, you will leave a mountain of heads behind." That's it. तो उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया सर? पढ़ाना चाहिए था ना. और वहाँ का इतिहास जानने के लिए हमको टूर करना पड़ेगा. जी. You need to tour to Vietnam, you need to tour to Correct. Japan, you need to go to Thailand, you need And, to and go I used to be so happy by the way. Malaysia, Indonesia. और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि फॉर एग्जांपल एशियन गेम्स की जब हम लोग लाइव टेलीकास्ट तो होती नहीं थी, उसके बाद जब टेलीकास्ट होती थी, रिकॉर्डेड टेलीकास्ट जब हुआ करती थी, हम देखते थे वियतनाम से अपना कंबोडिया, उसके बाद कंबोचिया हो गया, वो वहाँ से लाओस से थाईलैंड से जितने भी बॉक्सर आते थे या रेसलर आते थे, जो भी आते थे, सबसे पहला काम करते थे, दे यूज्ड टू डू दिस, नमस्ते करते थे हर एक को ऐसा करके. फाइनली आवर एथलीट्स हैव आल्सो स्टार्टेड टू डू दैट, नमस्कार करना हर एक ने शुरू कर दिया. अब तो और छोड़िए, हॉलीवुड के स्टार्स ने भी कर दिया शुरू. Yes. एंड इवन द अमेरिकन एथलीट्स हैव स्टार्टेड टू फोल्ड देयर हैंड्स. This is better than shaking your hand. It's better than shaking hands. So all I'm saying is, at the end of the day, you can't forget who you are. You have to respect everybody. I agree. As Javed Akhtar Sahab explained yesterday, the Mughals gave a huge amount to this country, but so did other people. India did not have only the Mughals. India is an ancient civilization dating back, according to one particular estimate, to over 7,000 years. So the Mughals were a small blip in that entire period. Now, we can't just keep talking only of a small period and forget about the rest. You can't do that. So, Wake up. पूरे देश को साथ में लेके चलना पड़ेगा ना सर, ऐसा तो नहीं होता. एनीवे, दैट्स इट फॉर टुडे. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर करें. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. वो घंटी बज गई है प्रदीप जी. The fastest growing channel of the nation now. The Fastest growing channel of the nation now. That's it. And we'll meet you tomorrow. आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें. We'll try and read out your comments. And of course, we'll see you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.